Hi everyone. Good evening. Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. We're going to discuss a certain type of questions which have come not only in RMO but also in other math contests like APMO and also contests like Junior Canadian Math Olympiad, and which involves irrational numbers. So irrational numbers या उनके questions से किस तरीके से deal करना है, we'll be studying in this session. And if you have any doubt, you can always contact me on this Telegram ID at the rate Abhay86 Mahajan. So let us have a look at a kind of problems. We'll try to do two problems, and I'll give you two problems as homework in today's session. So the problem is, let a be an integer. A एक integer है. Prove that for any real number x such that x square is less than 3, the numbers root of 3 minus x square and cube root of a minus x cube are not both rational. ये problem we discussed in one of our RMO camp sessions, and I thought I would make a video on this also. So root of 3 minus x square, cube root of a minus x cube are both not rational. दोनों के दोनों rational नहीं हो सकते if x is any real number, right? So you have to look at what is rational, what is irrational, what is real. So x is any real number. X can be any real number. It can be rational, it can be irrational, but a is an integer definitely. And it is also given that x square is less than 3. ये probably इसके लिए दी हुई है because this 3 minus x square is under the root. So this is just to ensure that whatever is under the root is positive, right? But you have to prove that both of these are not, both cannot be rational at the same time. Okay, so इसमें सबसे जो तगड़ी अप्रोच होती है, सबसे बिलीवेबल अप्रोच जो होती है and सबसे जेन्युइन अप्रोच होती है, that is the contradiction, right? So for the sake of contradiction, let's assume let capital X be root of 3 minus x square and capital Y be cube root of a minus x cube. A is an integer, by the way. A integer है. They're both rational numbers. मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों rational numbers हैं. तो यहाँ पे किसी तरीके से हमें contradiction prove करना है. To prove contradiction in some way or the other. So अगर मैं square करता हूँ तो small x square is 3 minus capital X square. Small x cube is a minus capital Y cube. x एक common link है. x इसलिए भी खराब चीज है बिकॉज x एक रियल नंबर है. वी डू नॉट नो मच इंफॉर्मेशन अबाउट x. तो जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी ना उसको सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया करो. सो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं हुआ तो कॉन्ट्रडिक्शन हम जरा कुछ प्रूव कर नहीं सकते. एक्स को हटाने की कोशिश करते हैं. एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैसे हटा सकते हैं? इस चीज को क्यूब कर सकते हैं एंड इसको स्क्वायर कर सकते हैं एंड इक्वेट कर सकते हैं. सो वी कैन इक्वेट बाय क्यूबिंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड स्क्वायरिंग द सेकंड इक्वेशन. सो x cube is x square power 3 by 2 और x6 is x6. x cube का whole square is a minus y cube का whole square and x square का whole cube is 3 minus x square whole cube. So this is what we got. a minus y cube whole square is equal to 3 minus x square whole cube. And if I take square root both sides, तो यहाँ पर ही अगर मैं square root करता हूँ, लेता हूँ, so a minus y cube will be 3 by 2. 3 minus x square power 3 by 2, 3 minus x square power 3 by 2 with plus and minus sign. इसमें से भी एक पार्ट तो बाहर ही निकल जाएगा. 3 minus x square, 3 minus x square power half will be under the root. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है because if x is a rational number, 3 minus x square is also a rational number. In fact, left hand side a minus y cube is a rational number because a is an integer and y is a rational number. a अगर integer है, y rational number है, तो left hand side rational number है, ये rational है, ये problematic way है, right? So 3 minus x square power half is something which is not known. यहाँ पर देखो, this is different from this. यहाँ पे था 3 minus small x square, ठीक है, and we assume that x is rational. यहाँ पे 3 minus capital X square है, so there is a difference in between. फिर बहुत obvious सी बात है यहाँ पे, if this is true, this is rational, this part is rational, this has to be a rational number. That is root of 3 minus capital X square should also be a rational number. So अगर root of 3 minus x square को मैं k मान लेता हूँ, so k has to be rational. There is no other way because only other, if this is irrational, अगर root of 3 minus x square का root नहीं हटता है तो clearly the right hand side becomes irrational, left hand side is rational. It cannot be equal, right? So this has to be rational. So 3 minus x square is k square and we got x square plus k square is equal to 3. x square plus k square is equal to 3. इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें x और k के बारे में एक अच्छी जानकारी है. What is that we know?
So one is capital X. What was capital X? It was assumed to be rational number. This is something that we assumed. And K also is a rational number. Sum of two rational numbers is 3, or sum of squares of two rational numbers is 3. So if I have to prove this wrong, I have to prove some kind of contradiction here, because अभी तक तो कहीं मिला नहीं. So x square plus k square is equal to 3, and यहाँ पर सब कुछ known है, मतलब x is also rational, k is also rational. So some kind of contradiction I have to make here. ठीक है, तो कैसे मेक करें? ठीक है, तो यहाँ पर ना खुद से सोचने की कोशिश करो कि यार, क्योंकि डायरेक्टली तो समझ में आएगा नहीं, तो किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन. तो पहले तो सोचो कि यार किन्हीं दो नंबर्स का सम, रैशनल नंबर्स का सम 3 हो सकता है. हो सकता है 1 + 2, 2 + 1. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों भी, इनके स्क्वायर्स भी रैशनल है. ठीक है, मतलब तो k स्क्वायर 2 है, तो k √2 विच इज नॉट अलाउड, बिकॉज x एंड k, कैपिटल x एंड k आर आल्सो रैशनल. इसका मतलब हमें थोड़ा सा और बियॉन्ड देखना चाहिए. कैसे बियॉन्ड देखना चाहिए? क्या इसके इंटीजर्स तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या फ्रैक्शंस का सम 3 हो सकता है? दो फ्रैक्शंस का सम 3 बिल्कुल हो सकता है. दो फ्रैक्शन सम 3 कैसे हो सकता है? सो कुछ ऐसा कर लो, 1/3 + 2/3. 1/3 + 2/3. ठीक है, सम 3 है, बट अगेन यहाँ पर भी रैशनल तो नहीं आ रहा. तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि ये पॉसिबल तो नहीं है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से लेके मुझे दिखाई देगा कि इज इट पॉसिबल, दिस डज नॉट सीम पॉसिबल. तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मुझे यहीं पर शो करनी है. सो दिस इज व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन माय माइंड. ये सारा रफ है, राइट? सो दिस इज ऑल रफ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन इन माय माइंड. क्योंकि ऑल आई हैड टू डू वाज, मैंने कॉन्ट्रडिक्शन शो करनी थी, यहां से शुरू किए, बट कॉन्ट्रडिक्शन कहीं शो नहीं हो रही, यहां पर रुक गए. अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है. तो किसी तरीके से मुझे कॉन्ट्रडिक्शन शो करनी है. यहाँ पर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बिकॉज दिस डज नॉट सीम पॉसिबल. एक तो और एग्जांपल से तुम देख सकते हो इसको. अगर 3 है, 3 और कैसे ले सकते हो? लेट्स से 1/6, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/6, नहीं 17/6. 1/6, 17/6. इनफैक्ट इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2/6 एंड 4/6. So 2/6 and 4. अच्छा, मुझे 3 प्रूव करना ना, सॉरी, ये तो 1 हो गया, तो यहां पर 3 पुट करना, तो यहां पर 8 होगा. 8 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16/6. 2/6 प्लस 16/6 इज ऑल्सो 3 अगेन, बट यहां से भी कुछ रैशनल तो नजर नहीं आ रहा है. तो प्रॉब्लम तो यहीं पर है. अब मैं किस तरीके से इसको रैशनल प्रूव करूं? तो x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 3 है, और x और k दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स है. तो मान लेते हैं रैशनल नंबर्स. सो लेट x इज p/q, k इज r/q. x p/q है, k r/q है. अच्छा, मैंने यहां पर ये दोनों क्यों ले लिए? ठीक है, बिकॉज अगर ये अलग अलग, क्या ये अलग अलग नहीं हो सकते? हो सकते हैं अलग अलग, दे कैन डेफिनेटली बी, बट सिंस राइट हैंड साइड एक इंटीजर है 3, तो कहना से किसी ना किसी PQR के लिए ये ऐसा ट्रू हो गई होगा, वेयर PQR इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे 1/3 प्लस 16/6, ये भी 3 है. 1/3 प्लस 16/6 भी 3 है, बट यहां पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो नीचे 3 आए. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली एलसीएम लेके कुछ उधर जाएगा ना, तो वो मैं एलसीएम सेम मान रहा हूं. ठीक है, एलसीएम सेम मान रहा हूं जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. सो लेट x is p/q, k is r/q, where p, q, r are integers and they are in the simplest form. मान लिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में. अच्छा, यहां पर ये हो सकता है कि p और q का जीसीडी आपस में 1 नहीं हो, r और q का जीसीडी आपस, बट तीनों का जीसीडी 1 है. ठीक है, सो तीनों का जीसीडी 1 है. दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग है. तो जैसे ही x को p/q, k को r/q किया, तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज 3q स्क्वायर. अब जैसे ही मैंने परफेक्ट स्क्वायर देखा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स आ गए. ठीक है, तो रैशनल नंबर की खास बात क्या होती है कि रैशनल नंबर में तुम कभी भी इंटीजर घुसा सकते हो और इंटीजर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्क्वायर ऑफ अ नंबर है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3q स्क्वायर. तो सिंस स्क्वायर्स की बात हो रही है, यहाँ पे 3 भी आ गया, तो मुझे मॉड 3 इन्वॉल्व करना है. तो n स्क्वायर हमें पता है कि इज ऑलवेज 0 और 1 मॉड 3. किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर या तो 0 होता है या 1 होता है. तो यही इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो राइट हैंड साइड मुझे दिखाई दे रहा है 0 मॉड 3 है. ठीक है, राइट हैंड साइड 0 मॉड 3 है.
यहाँ पे दो स्क्वायर्स का सम भी 0 mod 3 होना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या 0 1, तो यही पॉसिबिलिटी है 0 1 1 0 1 1, ये तो पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है नहीं। So p square plus r square is 3q square, and if I take mod 3 both sides, I get that p square and r square both are 0 mod 3. तो right hand side is 0 mod 3, इसका मतलब left hand side should be 0 mod 3. हमें पता है कि n square is always 0 और 1 mod 3, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या फिर 1 mod 3 होता है. So that means p square and r square both are 0 mod 3, both are 0 mod 3. अगर दो नंबर्स, कोई भी नंबर 0 mod 3 है तो p and r also are 0 mod 3, मतलब p and r both are multiples of 3. So p को 3p1 मान लिया, r को 3r1 मान लिया. So जैसे यहाँ पे वापस पुट किया, so 9p1 square plus 9r1 square is equal to 3q square. 3 से डिवाइड करते हैं, q square becomes 3 times p1 square plus r1 square. ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, ये तुमने बहुत बार देखी होगी, की होगी. So 3 divides q square, 3 divides q square, so 3 also divides q. अब p is a multiple of 3, r is a multiple of 3, q is also a multiple of 3. That means ये जो हमारी assumption थी that p q r in the simplest form is not true, and hence यहाँ पे contradiction proof कर दी. Now please understand, जब मैं प्रॉब्लम को कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को कर रहा हूँ, देखो प्रूफ क्या करना था कि रैशनल नहीं है, और मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं कि पी क्यू आर का जीसीडी 1 नहीं है. ठीक है. सो अगेन समथिंग व्हिच आई एम प्रूविंग एट द एंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड टू प्रूव अर्लियर, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दैट यू कैन ऑलवेज contradict things with a concept which are remotely associated to what we have to prove. In fact, अगर तुमने root 2 irrational, proving that root 2 irrational, which is there in the textbooks, एक देखा है, तो वो भी it is the similar kind of proof, similar kind of proof. उसके अंदर exactly यही motivation रहती है. ठीक है. So I hope this is clear, and we've been able to prove that both of them cannot be rational together. Both of them cannot be rational together. Right? Hope you've understood this problem. एक और सिंपल सा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि आयोक्यम लेवल का है. फाइंड ऑल द इंटीजर्स n सो दैट द नंबर रूट ऑफ 4n minus 2 upon n plus 5 is rational. ठीक है. सो ऑल इंटीजर्स n so that this part is rational. So this is not very difficult, but since we're discussing rational irrational, so I thought I would just involve one more concept here in this video. So again, ये rational है. मान लिया कि a by b where a and b are co-prime to each other. Squaring both sides. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. अब मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? मुझे n के बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट n इज एन इंटीजर. तो यहां से n अलग कर लिया, n बिकम्स 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब इस तरह के चीजों के आगे अगला स्टेप बहुत ऑब्वियस होता है, दैट इज यू हैव टू राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे 5a स्क्वायर है, नेगेटिव साइन, तो ये -5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे -5 का मल्टीपल जनरेट करना पड़ेगा. तो 4 इंटू -5 -20, सो -20 ऐड कर दो, -20 सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे किया है. सो 2b स्क्वायर प्लस 20b स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर. ये वाला जो पोर्शन है ये तो -5 हो गया, -5, एंड यहाँ पे 22b स्क्वायर आ गया. अब सिंस n एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो दिस हैज टू बी एन इंटीजर, हैज टू बी एन इंटीजर. एंड यहां पर अच्छी बात क्या है कि ये ऊपर b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर 4a स्क्वायर है. हमें पता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी ऑफ b स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ऑलवेज 1. तो मतलब यहां से और नीचे से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो कॉमन अगर आएगा ये अब्सॉर्ब होगा नीचे वाली चीज, तो वो 22 से अब्सॉर्ब होगी. सो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 22, एंड इफ इट इज अ फैक्टर ऑफ 22, तो यही फैक्टर्स है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 22. सो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 8 वैल्यूज ले सकता है. चाहो तो चारों के चार सभी 8 वैल्यूज को बैश कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे दोबारा से तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो. यहाँ पे 4b स्क्वायर दिखा है, तो अगर मैं मॉड 4 लेता हूं, अगर मैं मॉड 4 लेता हूं, तो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 माइनस a स्क्वायर मॉड 4. हमें यह भी पता है कि n स्क्वायर, एनी स्क्वायर इज 0 और 1 मॉड 4. ठीक है. ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स पता होनी चाहिए, बिकॉज इस तरह के प्रॉब्लम्स यूजिंग दी स्क्वायर प्रॉपर्टीज लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था, वेयर इन स्क्वायर्स के ऊपर द मॉड 3 मॉड 4 के ऊपर डिस्कशन हो रही थी. 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0 माइनस a स्क्वायर मॉड 4. n स्क्वायर अगर 0 1 मॉड 4 है, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? प्लस माइनस, सॉरी, दिस इज ईदर -1 mod 4 or 0 mod 4.
सो अगर a स्क्वायर 0 mod 4 है 0 mod 4 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, एंड अगर a स्क्वायर 1 mod 4 है तो -1 mod, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ओनली -1 और 0 mod 4। हम राइट साइड से देख लो कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो 0 और -1 mod 4 है। सो एक तो यहाँ से -1 आ जाएगा, 2 तो और -2 दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, एंड 11 इज -1, इसका मतलब 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ तो -1 है, यहाँ पर 11। सो एक केस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर -1 है, इंटीजर है, a और b इंटीजर्स हैं, तो फैक्टराइज करके 2b + 1 2b + a 2b - a -1 एंड 2b + a 2b - a 11। यहाँ से कोई सोल्यूशन आता नहीं है, यहाँ से ये सोल्यूशंस आ जाते हैं a5 b3 एंड ns13। सो देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ n, राइट। सो ये काफी सिंपल है, ये आयोकिम टाइप का प्रॉब्लम तुम बोल सकते हो। द पॉइंट इज इरैशनल टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इनफैक्ट 2019 के अंदर ये प्रॉब्लम आया था आरएमओ का। x is a non-zero real number such that both x to the power 5 and 20x plus 19/x are rational numbers। ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। प्रूव दैट x is also rational number। x to the power 5 and 20x plus 19/x दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं, हमें प्रूव करना है x also is a rational number। ठीक है, अब of course I will not be discussing this solution because this is there in the official site of HPCSE, तुम इनका सोल्यूशन देख सकते हो, बट अगेन बिफोर दैट जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम। तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूव किया हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। द वन गिवन इन HPCSE ऑफिशियल नोट्स involve a to the power n minus b to the power n। It's a very amazing manipulation, but there are other solutions also apart from the one which is given in the official site। ठीक है, तो इसके ऊपर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये तुम हमेशा देख सकते हो। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। ABC is a positive, ABC are positive integers such that a root 3 plus b upon b root 3 plus c a root 3 plus b upon b root 3 plus c is a rational number। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक रैशनल नंबर है। शो दैट दिस इज एन इंटीजर, हमें शो करना है कि ये जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a प्लस b प्लस c एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। ठीक है, किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं? ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट स्टेप बहुत क्लियर है। a रूट 3 प्लस b अपॉन b रूट 3 प्लस c एक रैशनल नंबर है। सो मान लेते हैं वो रैशनल नंबर r है। ठीक है, यहां पर दो अप्रोचेस होते हैं कि रैशनल नंबर को p बाय q फॉर्म में मान सकते हो, वेयर p and q और इंटीजर्स, बट मुझे पता नहीं कि यहाँ पर इंटीजर्स का यूज होगा नहीं होगा। तो ये चीज ना बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज सी द थिंग इज, जो हमने पहला प्रॉब्लम किया था यहाँ पे, द प्रॉब्लम वी हैड डन यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे a बाय b लिया था बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा था कि a और b यूज होंगे, a और b इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इनफैक्ट यहाँ पर भी इस पॉइंट पे हमने p बाय q r बाय q लिया बिकॉज यहाँ पे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज यूज करने थी हमने। ठीक है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? स्क्वायर्स, mod 3, स्क्वायर्स, mod 4, दीज आर द प्रॉपर्टीज, डिविजिबिलिटी। तो ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हम यूज करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे पता नहीं कि यूज होगा नहीं होगा, आई डोंट नो वेदर दिस इज गोइंग टू गेट यूज और नॉट। तो दो अप्रोचेस हैं, इसको r मान सकते हो, अगर बाद में जरूरत पड़ी तो बाद में r को p बाय q ले सकते हो, where p and q are integers and p and q is 1। तो बट स्टार्टिंग में तुम r ले सकते हो, where r is the rational number, r is a rational number because अभी क्या है, मुझे सबसे पहला चीज क्या है, रूट 3 को अलग करना है, वो मेरे दिमाग में है। तो रूट 3 को अलग करना है, तुम p बाय q से भी कर सकते हो। p बाय q से क्या होगा, वेरिएबल्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, रूट 3 को अलग करके r को बाद में p बाय q भी पुट कर सकते हो तुम। तो अगर मैं इसको अलग करता हूं तो a रूट 3 प्लस b इज इक्वल टू बी आर रूट 3 प्लस सी आर। यहां से रूट 3 अलग कर दिया, सो a माइनस बी आर रूट 3 इज इक्वल टू सी आर माइनस बी। अच्छा, a and b are integers and that too positive integers, r is a rational number। so can I say यहां से एक चीज बहुत क्लियर है, the thing which is very clear to us is this part is rational, this part is rational and this is root 3 also। so can I say अगर ये true है then implies a minus br has to be 0। a minus br का वैल्यू 0 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम इसको दिखा भी सकते हो, you can also prove this, in fact you should prove this। why this has to be 0? because otherwise if this is not 0 then root 3 will be cr minus b upon a minus br। so this is the contradiction because left hand side is irrational and right hand side is rational।
So agar if this statement is true, b minus a minus br has to be 0. In fact, there was a problem in IOCM 2025 based on this concept. It's a very common concept. तो यहां से clearly r का value a by b आ गया और a is equal to br. a is equal to br. a अगर br है तो ये वाला पार्ट 0, तो इसका मतलब cr is equal to b, तो b is equal to cr also, and we are done. ठीक है, a br है and c का b का वैल्यू cr है. b का वैल्यू cr है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, cr. इसका मतलब a b c पॉजिटिव इंटीजर तो है ही है, बट gp में भी है. ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ कोर्स इट इज जस्ट अ मैनिपुलेशन दैट यू कैन डू. सो इट्स वाज अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सी, are these kind of problems going to come in RMO? No. But this concept, these small concepts is what I'm going to discuss in the series. Okay, कि ताकि ये series, ये concepts उठा के तुम इन concepts को use कर सको आराम से. I hope this is clear. So normally जो अच्छे questions बनते हैं, they are on these kind of concept. The first problem that we did, जहाँ पर contradiction है, contradiction के साथ integers की properties, perfect squares, ये सब चीजें involved हैं. Right, so you have to be very careful here. I hope this is clear to everyone and you enjoyed the session. So that's it. And of course, the RMO camp is all ongoing. It is almost at the end stage. You can still join. The link is there in the description box. Hope you've enjoyed. Keep liking, sharing, and subscribing to this channel. God bless you.